Good morning, friend. We are discussing about the VSNIS 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the current affairs section, in which they are asking about the basically start. Start is what? The here definition also is given. Number start means S for strategic, A for arms, R for reduction, and treaty. It means strategic arms reduction treaty. We have to reduce arms and ammunition in our country. That is the news. That is the relation between number first Israel and Palestine. Second, USA and China. Number third, Israel and Saudi Arabia. Number fourth, USA and Russia. I can repeat the question. स्टार जो ट्रीटी है वो किस किस कंट्री के बीच में है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल एंड पैलेस्टीन. सेकंड ऑप्शन है उनके पास यूएसए एंड चाइना, क्योंकि इनकी राइवलरी बढ़ रही है, ये कह सकते हैं. थर्ड है इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, ये हमेशा से दुश्मन रहे हैं. फोर्थ यूएसए एंड रशिया, ये तो मतलब 1991 के बाद, इवन 1945 के बाद, 1991 के बाद एक गेन ब्रेक डाउन सा था. एंड 1991 के बाद अगैन रशिया अपने आप को रीअथराइज करने की कोशिश करे इन द वर्ल्ड. लेट्स सी कि कौन जीतता है. वैसे यूएसए इज द विनर. टुडे इज द मल्टीपोलर, बट आफ्टर 1991 देयर इज अ टाइम व्हेन unipolar world is existing, right? After 1991 victim of USSR. Let's see the next question. Next question is related to the polity section, in which they are asking about the basically about the judges, removal of judges of the High Court in India. Let's see the things. First statement is said like that: Article 124 of the Indian Constitution. Article 124 of the Indian Constitution deals with the removal of the High Court judges. Second, the motion for the removal of a High Court judges can only be initiated in the Lok Sabha. So motion of the removal of any High Court judge is done only through the Lok Sabha. Number third, so far no High Court judge has been impeached, and your option is this, and you have to choose the correct option from the given option. First third, third, second third, first and second. Again repeat the question. सी क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारे कोर्ट है ऑफ हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट है, उसके जज की रिमूवल की बात की जा रही है. तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्टिकल 124 कंसिडर या डील करता है कि किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, क्या प्रोसीजर वहाँ पे ले डाउन किया गया. लेकिन ये याद रखना, हाई कोर्ट है डेट आर एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑन द अथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, यू कैन से, because we are following appellate jurisdiction. Let's see the second statement. The motion of the removal of the High Court judges can be only be initiated in the Lok Sabha. Number third, so no for High Court judges has been impeached in our country. Let's see the next question. You have to choose the correct option from the given option. Let's see the next question related to the art and culture, in which they are asking about the Indian painting, or the style or the feature of the Indian painting. One statement is said like that traditionally done by the women folk on mud wall. मतलब पहले जो है ट्रेडिशनली वुमेन folk इसको किया करती थी. ये जो है किसी क्लॉथ हैंडमेड हैंड कन्वास पे भी किया जा सकता है. जो मेन थीम हिंदू डाइटीज़ थी. नंबर थर्ड, जनरली एम्प्टी स्पेसेस फिल्ड विद द वेरियस मोटिव. एंड योर ऑप्शन इज दिस: कंगड़ा पेंटिंग, मिथिले पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, वारली पेंटिंग. जस्ट अ मिनट, मैं इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करती हूँ. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द इंडियन पेंटिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट सेड लाइक दैट ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन folk. Second, it is done on the cloth, handmade and canvas. The main theme revolves around the Hindu deities. Generally, this is also seen in our classical dances. First thing. Second thing, that is also get involved in the dance form also, or the type of a storytelling, or the Geet and folk that are found at regional level, right? Generally, empty spaces are filled with the various motifs, so that there is no any space that left behind. So you can say that it is a type of embroidery. Embroidery is just intrication of the various painting style. And option are these: Kangra painting, Kalamkari painting, Warli painting, Mithili painting. Let's see the next question. If you are talking about the next question, which of the following pairs of island are separated from the 8-degree channel? आपको पता होना चाहिए 8 degree channel, 10 degree channel, 38 degree channel, 49 degree channel, एंड ये जो इस जितने भी चैनल है ये सारे इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द क्वेश्चन. 8 डिग्री चैनल की बात की जा रही है. किस किस को ये अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड मिनिकॉय, सुमात्रा एंड जावा. अगेन रिपीट द क्वेश्चन. अंडमान एंड निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड मिनिकॉय, सुमात्रा एंड जावा. तो ये बताना इनमें से कौन सा जो कंट्री का पेयर है जो 8 डिग्री चैनल को पार करता है या फिर एसोसिएटेड है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्टेन मिनरल अकर एज एल्यूमिनियम डिपॉजिट कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट. Which of the following are found in placer deposit? So there are option: silver, gold, platinum, tin. And you have to choose the correct option from the given option. And option are these: first, second, third, second, fourth, first, second, third, fourth. Again repeat the question. देखो, जो एल्यूवियल डिपॉजिट है वो आते कहाँ से हैं? गंगा, या फिर मतलब गंगा उत्तरी ग्लेशियर से आते हैं या यमुनोत्री ग्लेशियर से आते हैं. दैट इज द थिंग, राइट.
But at the same point of time, you see that they are come from the mountainous region where the rocks are dissolved in that water, and then when they are going down the slopes and when the speed is reduced, basically the whole deposit that are found in that water, they are banked up along the river, right? जो भारी तत्व होता है किसी भी रिवर का, जो रोक से गुजरती है, तो जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब उसमें एनर्जी नहीं बचती है, तो जो साइड में बैंक बनाते हुए चलती है और जो उसका लेफ़्ट ओवर है वो छोड़ के जाती है। तो आपको यही बताना है कि उसमें जो मिनरल पाए जाते हैं वही मिनरल पाए जाते हैं आपके प्लेसर डिपॉजिट में। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट है जो प्लेसर डिपॉजिट में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टिन, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बाज ओके, स्टार्ट ट्रीटी की बात करें तो आप ये खुद ही देख सकते हैं। स्टार्ट ट्रीटी डेट इज़ द स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, तो ये पाई जाती है आपके यूएसए एंड रशिया के बीच में। लेट्स सी द थिंग्स अबाउट स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है लास्ट रिमेनिंग आर्म रिडक्शन पैक्ट बिटवीन द यूएसए एंड रशिया। मान लिया जाएगा स्टार्ट ट्रीटी को वैसे अब फिलहाल तो रिवाइव कर दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये एक लास्ट स्ट्रेटेजिक टूल था जो यूएसए एंड रशिया के बीच में एग्जिस्ट करता है, सो डैट द स्ट्रेटेजिक मतलब क्या कि जो वॉर हेड वगैरह है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह वो ज़्यादा न बन पाए, इसका मेन एम यही था। जो ट्रीटी है वो जो इफेक्ट में कब आई थी, 2011 में आई थी लिमिट, और इसमें मेन एम ये था कि वो लिमिट करती है नॉट ओनली यूएसए रशिया दोनों को ही, कि वो 15550 मतलब 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं रख सकते हैं, और अगर रखते हैं तो वो इम्पोज कर सकते हैं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन। इस ट्रीटी में ये भी डिटेल में लिखा गया था किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए, किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा कि यस ये जो कंट्री है इतने ही वेपन बना रही है, ये अपने लिमिट्स में है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कई बार कह चुके थे कि रशिया जो है इस ट्रीटी को उल्लंघन कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट की बात करें, ये पहली बात तो ये याद रखना, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल पार्ट 6 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 6 में आई थिंक 6 चैप्टर हैं, पार्ट 5 में आई थिंक पार्ट 5 में 5 ही चैप्टर हैं, पार्ट 5 में 5 चैप्टर है, राइट। पार्ट 6 में चैप्टर 6 है आई थिंक सो, राइट। और ये जो है आपको 124 में नहीं बल्कि जस्ट अ मिनट, मुझे भी नहीं पता, कितने यहाँ पे देने लिखा, आई थिंक 222 है, 226 मेरी जुरिडिक्शन की पावर है। ओके लेट्स सी। आज मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, ये 124 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है, ना कि हाई कोर्ट के बारे में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड की बात करें, फॉर मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, नहीं, ये सिर्फ मनी बिल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मोशन जो है लोकसभा के रिमूव करने का किसी भी मेंबर को हाई कोर्ट के जज के लिए, तो वो जो है किसी भी हाउस में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नंबर वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द लोकसभा 100 पीपल शुड बी इनकन्वींस दैट कि 100 people, at least 100 people in the Lok Sabha should be pass resolution in favor of the impeachment of that person. Number 3 की बात करें, so no for high court judge are impeached, yes that is correct, but the 1992 में एक केस भी आया था, रामास्वामी करके एक पर्सन थे लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो 3rd सही है, मतलब उनका इम्पीच हो सकते थे वो, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो नहीं हो पाए। बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3rd स्टेटमेंट सही है, राइट। Let's see. Article 217 of the, yes, ये मैं ढूंढ रही थी, Article 217 of the Indian Constitution that are discussed about the High Court that are mentioned about the removal of the हाई कोर्ट। जिनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। पर प्रेसिडेंट करता कैसे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से इनको भी रिमूव किया जाए, मतलब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के केस में भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें पार्लियामेंट पिक्चर में आता है, पार्लियामेंट के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है। अगर बात करें यूपीएससी की, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनके पर्सन को इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर के तौर पे हटा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज तो है ही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड क्या, ये 3 ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके पर्सन को हटाया जाता है थ्रू पार्लियामेंट, राइट। अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम प्रेसिडेंट जो है इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर के रीज़न की वजह से हम किसको हटा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को। द कंपोजिशन रिक्वायर्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जो है इम्पार्शियल होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल के द्वारा एक जजमेंट पास किया जाना चाहिए, और ये जो पूरा का पूरा काम होना चाहिए जज इंक्वायरी एक्ट, ये खुद से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जज इंक्वायरी एक्ट कब पास किया गया था, या फिर कोड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ 1971 कब पास किया। जब भी आप किस तरीके से कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसका साथ ईयर भी साथ साथ पढ़ते हैं ताकि वो याद हो जाए। तो यहाँ पे ओनली 3rd, ओके राइट।
रिमूवल मोशन जो है 100 पीपल चाहिए, 25 पीपल चाहिए 50 पीपल चाहिए राज्यसभा का, बस इतना पता होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिशन डन बाय द वुमेन वर्क ऑन मड वॉल, इट इज़ नाउ ऑल्सो पेंटेड ऑन अ क्लॉथ, हैंडमेड, पेपर एंड कनवास, रिवॉल्व अराउंड द हिंदू डाइटीज, जनरली एम्प्टी स्पेसेस जो है मोटिव से भर दिए जाते हैं। तो ये जो है मिथली पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है? बिहार में। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, या फिर हमारे यूपी में पाई जाती है कलमकारी। कंगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्टाइल है। लेट्स सी द थिंग। मथली पेंटिंग ऑल्सो नोन एज द मधुबानी पेंटिंग भी कहा जाता है। ओरिजिनेट हुई थी स्मॉल विलेज मथली में, बिहार के ही। थीम इसकी ये है कि हिंदू डाइटी मोस्टली जो हमारी राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, इवन बस इतनी जो ये वाला एरिया है, इसमें रीजनल थीम बहुत ज़्यादा रहती है। केरला भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थीम है, लेकिन फिलहाल चेंज हो रहा है। एनीवे, थीम ऑफ द मथली पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड द हिंदू डाइटीज, कृष्णा, रामा, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, तो उनकी मोटिव उसमें पाई जाती है। जो नेचुरल थीम जैसे सन, मून एंड रिलीजियस प्लांट ऑल्सो भी फाउंड है। एंड तुलसी जो है हीलर माना जाता है इनको। द पेंटिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन फोक, लेकिन अब सब कर ले रहे हैं। वन कैन फाइंड पेंटिंग बेस्ड ऑन द सीन्स फ्रॉम द रॉयल कोर्ट, सोशल इवेंट, वेडिंग वगैरह। एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट आफ्टर पेंटिंग द मेन थीम। मिथली पेंटिंग की बात करें, डोमेस्टिक रिचुअल एक्टिविटी हुआ करती थी। एंड और ये जो है बाद के बंदों को नहीं पता थी, तो बाद में इसकी जो विखाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतना नहीं पूछा जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइलैंड जो है 8 डिग्री चैनल को मतलब काटते हैं? तो ये है मोल्डिव एंड मिनोगे, 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उनके बीच में डनकन पास भी पाया जाता है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकोय। मिनिकोय क्या है? मिनिकोय लार्जेस्ट आइलैंड है आपके लक्षद्वीप का, जिसमें 32 आइलैंड है। एंड इसकी मिनी कावरती इसकी कैपिटल है। और ये पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। और कोरल की बात करें तो फ्रिंजिंग रीफ से बना हुआ है। और फिलहाल जी गुजरात में बात चली हुई थी कि हम किस तरीके से आर्टिफिशियल जो है कोरल बना सकते हैं यूजिंग थ्रू इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मेथड से, जिसमें एक तरफ हम कैथोड एनोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। 8 मिनिकोय की मैं बात करूँ, जो मालदीव जो है, मालदीव बिल्कुल हमारे ही इंडियन ओशन में पड़ता है। सबसे छोटा कंट्री हमारी साउथ एशिया कंट्रीज़ में, ठीक है। मिनिकोय मैंने बताया ही दिया। ऑल्सो मक्कोम, ये लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। अलॉन्ग विद द वेरिंग लेटर्स ऑल्सो मेरिकाइड टोयल, यू कैन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द लक्षद्वीप इज फाउंड, इस्लामिक पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्लेसर डिपॉजिट है किस से बनता है? आई थिंक सारे ही होने चाहिए, क्योंकि रॉक से ही आते हैं। रॉक्स में हर चीज़ पाया जाता है। ऑल्दो इनका ओवर फॉर्म्ड सर्टेन मिनरल्स में ऑल्सो एज एलुवियल डिपॉजिट सैंड ऑफ वैली फ्लोर ऑन द बेस ऑफ द हिल। ये जो प्लेसर डिपॉजिट है जनरली बहुत सारे एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम एक्सेट्रा। बस इसमें तो कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। लेट्स सी द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिवाइज स्कीम। कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2020 में जो है लेकर आई गई थी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द थिंग, क्या हम कर सकते हैं इसमें। यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रोडक्शन स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है लॉन्च किया, अप्रूव कर दिया बेसिकली। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक्सपेंडिचर जो इम्प्लीमेंटेशन यूनियन गवर्नमेंट करती है, और ये जनरली ऐसी स्टेट सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि सेंटर सब्जेक्ट पे बनाई जाती है जनरली। लेट्स सी इसका मेन एम ये रहेगा कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फूड ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन कॉम्पनसेट एंड ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम को? लेट्स सी सपोर्ट करना फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को, ताकि वो एक्सपेंड कर सके जितना हो सके, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आगे बढ़ा पाएंगे, स्पोर्ट क्रिएशन कर पाएंगे थ्रू ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग, उनको जोड़ पाएंगे ग्लोबल नेटवर्किंग के थ्रू। स्ट्रेंथन करना सिलेक्टेड इंडियन ब्रांड को, ताकि हम एक ब्रांड वैल्यू अपनी बना सकें, क्योंकि ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होती है। इसमें ऑल्दो इनटेंजिबल है लेकिन फिर भी ये दिखती है। थ्रू प्राइजिंग मोनेटाइजेशन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हमेशा से गवर्नमेंट का मेन एम ही रहा है। इंश्योर करना रेम्युनरेटरी प्राइस मिले, ताकि हम 2022 तक जो हमारा एम है 2022 तक डबल करना फार्मर की इनकम को हम कर पाएँ। ये आपको ये बताना है, ये जो रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा दी गई थी, हमें 2022 तक डबल करना है फार्मर की इनकम को। फीचर क्या है? इंसेंटिवाइज करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल रेडी, कुक, रेडी टू ईट। तो ये हमारा एम है। इनोवेट करना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ताकि इसका एक्सपोर्ट जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड जी कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में, वो हम भेज सकें। सेकंड कंपोनेंट इसका है कि ब्रांडिंग करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ब्रांड को अगर होना है, फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम को सुना, तो हल्दीराम कुछ भी हो आप ज़रूर खरीदोगे, लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू है इसलिए खरीदोगे, अदरवाइज़ तो लोकल में बहुत मिलते हैं। फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड अब्रोड, ये भी इसमें एक पहलू रखा गया है कि हम
फ़ॉरेन में भी ब्रांड जो है उसका विखायत करेंगे, मतलब उसका एडवर्टाइज करेंगे। कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क है, कन्वर्जन PLI स्कीम विल नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी अंडर अदर स्कीम। तो लाइक प्रधानमंत्री किसान संपदा है, वो दूसरा ही केस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये लेकर आ रहे हैं तो दूसरी जो स्कीम है वो इनफेक्टिव हो जाएगी। नो, दैट इज़ नॉट लाइक दैट केस विद दिस। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है थ्रू मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है अप्राइजल ऑफ द एप्लीकेशन प्रपोजल वेरिफिकेशन सपोर्ट। मतलब पहली बात तो ये कौन इनको बनाना चाह रहा है, तो ये जो है अप्रूवल करेगा, प्रपोजल देगा, एप्लीकेशन वगैरह चेक करेगा, देखेगा कि ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है नहीं, तो ये सारे काम करेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। जो स्कीम है मॉनिटरी की जाएगी सेंटर बाय द एम्पावरमेंट ग्रुप ऑफ द सेक्रेटरी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के जो है पर्सन रहेंगे और जिसको हेड किया जाए कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वुड हैव अपीयर अप्रूव सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट फॉर कवरेज अंडर द स्कीम। तो सैंक्शन दे चुके हैं। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का है वो जो है पहली बात तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, और बस मेन एम तो यही है। द इम्प्लीमेंटेशन द स्कीम वुड फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ये जो है शायद इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट स्कीम, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, नेफेड की बात की जा रही है। एक बिल प्रस्तुत किए गए हैं। लेट्स सी द थिंग्स, क्या इसमें बिल है। पार्लियामेंट ने पास किया नाफेड बिल को 2021 के लिए। फर्स्ट अनाउंस बाय द, ये जो है बजट में अनाउंस किया गया था। इट्स टू क्रिएट द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें का मेन एम था कि इस बजट में क्या बोला था कि हमें क्या बनाना है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक, ताकि हम क्रिएट कर सकें सपोर्टिव इकोसिस्टम ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। DFI जो है सेट करेगा प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर सच सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी वेदर द रिस्क इन्वॉल्व आर बियॉन्ड आर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। मतलब क्या है कि DFI को सेटअप किया जाएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, ताकि जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी वो इसको देखते रह सके, मॉनिटर कर सके। बात करें बैंक से किस तरीके से डिफरेंट है। DFI डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड सोर्स फंड फ्रॉम मार्केट गवर्नमेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है इसके सोर्स रहेंगे, जैसे NBFCs के होते हैं। बट द की फीचर ऑफ दीज ओल्ड DFI, गवर्नमेंट जो है 20,000 करोड़ देगी पहली बात तो, एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर के लिए सॉरी। DFI जो है 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, और ये जो है 26% जो भी हमारे NP वगैरह हैं तो वो जो है लेकर कम डाउन करेगी। DFI जो है बेनिफिट देगी हमारे 10 साल के लिए। क्या DFI विल गेट टैक्स बेनिफिट फॉर 10 ईयर। गवर्नमेंट विल अमेंड इंडियन स्टैम्प एक्ट टू अट्रैक्ट ग्लोबल पेंशन फंड्स एंड सॉवरेन फंड। तो फंड को एक्सपेंड करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है इसका मेन एम ये है कि अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल पेंशन को, तो वो इंडियन स्टैम्प एक्ट को भी जो है अमेंड करेगी। DFI जो है प्रोफेशनली मैनेज की जाती हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ देम बीइंग नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स सो दैट द ट्रांसपेरेंसी एंड अनबायस्ड डिसीजन कैन बी टेकन। दे सोर्स देयर कैपिटल फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड। जो ये पैसे कहाँ से उठा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल फंड से उठा सकते हैं। दिस इंश्योर देयर क्रेडिट वर्थिनेस विच इनेबल देम टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट इंटरनेशनल मार्केट, प्रोवाइड फाइनेंसिंग ऑन अ वेरी कंपीटिटिव टर्म। सो दैट इज द थिंग्स देयर। फंड्स रेज बाय DFI आर यूज्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो हम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें भी हम यूज़ किया जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव दो इसके ऑब्जेक्टिव मुख्यतः, पहले है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड इन्वेस्टर अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट लोकेटेड एंटायरली और पार्शल इन इंडिया। तो ये उस पर्सन को या फिर उस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करेगा जो हमारी कंट्री में थोड़ा सा या फिर हमारी ही कंट्री में लोकेट करते हैं। डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। फंक्शन की बात करें, क्या काम करेगा, ये जो है लोन वगैरह लेगा पहली बात तो, ये जो है रीफाइनेंसिंग भी करेगा जैसे नाबार्ड करते हैं RRB के लिए, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को ताकि पैसा उठाया जा सके मार्केट से। ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिटेट करेगा फॉरेन पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को विद वेरी ट्रांसपेरेंट वे। फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, ताकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। सोर्स क्या होंगे इनके फ़ंड के लिए भी देख लेते। NBFID जो है रेज़ करेगा मनी किसके फॉर्म में, लोन्स और सिक्योरिटी वगैरह के फॉर्म में। बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैनेजमेंट कौन करेगा NBFID की, हमने बॉडी बना दी लेकिन अगर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं रखा तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम नहीं चेक कर पाएंगे कि उसकी कितनी प्रोग्रेस रही। गवर्न बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहली बार द मेंबर ऑफ द बोर्ड इंक्लूड नंबर फर्स्ट द चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद RBI। तो चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए जाएंगे कंसल्ट करके RBI कि वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत महारत हासिल करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर होगा इसमें 3 डिप्टी में अदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर नॉमिनेट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अप टू 3 डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर वगैरह से आएंगे ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन हो इस पूरी बॉडी में।
द बॉडी विल अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कमेटी, तो शायद पीएम ही ऐड करें। प्रायर सैंक्शन की बात करें तो कितना इसका दिया जा चुका है। नो इन्वेस्टमेंट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एम्प्लॉय ऑफ द विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन नहीं इनिशिएट की जा सकता कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा सके। मेन एम यहाँ पे यही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द चेयरपर्सन और अदर पर्सन, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके खिलाफ जो है नहीं प्रोसीडिंग की स्टार्ट की जैसे। कोर्ट विल रिक्वायर ऑल्सो सैंक्शन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, तो कोर्ट को भी जो है रिक्वायर होगा क्या, प्रायर सैंक्शन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस और ऑफेंस इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉय एनबीएफडी में जो भी एम्प्लॉयड होगा, तो जो कोर्ट्स है वो विल रिक्वायर, वो भी जो है उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किससे ले सकते हैं, लॉ ऑफिसर कौन है हमारा, एडवोकेट जनरल। तो बाय दिस वी आर